chance to get a good rank in it. But for IIT Advanced, you have to be able to solve all type of tricky problems. So that you don't have to look for varied level of solving the problems for different type of problems. But if you're only aiming for mains, even going through NCRT level and ability to solve the modified problem is similar. Okay. Yes, sir. So we are starting here with the electrostatics. Have you heard about electrostatics earlier? What is the electrostatics? How do you define electrostatics? Yes, sir. It deals with uh, the the study of the current at rest Not current as rest, but anyway. So first of charges. all, in fact, if we talk of physical characteristics, in fact, if you talk of interaction, you know there are four types of interaction in the natures. In the nature, there are four types of interaction. Can you name them? What are type of interactions are there in the nature? Only there are four basic interaction in the nature. What are that? Uh, Interaction, attract, repel. Yeah, interaction means forces. There are four basic nature of forces. Can you name them? Mm, In the nature, if we talk of, there are only four basic nature of forces. Interaction of mass that we call gravitational interaction. You must oh, have yes. learned Yes, about sir. that in 11. Yes, sir. Electrostatic, magnetic. Newton's law of gravitation you must have learned in the 11. That is Yes, what sir. interaction by mass. But the Yes, mass is a physical characteristic due to which the two bodies or particles interact. That is called gravitation. Okay. yes, sir. There is another physical characteristic that creates interaction. What is that? Mm, Charge. charge. When one charge is at rest, it still exerts force on the other charges in the surrounding. That we call electrostatic interaction. Yes. But if one charge is moving, then it creates two types of fields, electric and magnetic fields. And in the surrounding, if the charges are rest, they are experiencing electric force. But if in the surrounding charges are moving, they are experiencing both electric and Magnetic effect. magnetic force. So basically, in Force. both electric and magnetic forces, the basic physical characteristic involved is what? Charges. Charges. So charges are the physical characteristics due to which a particle shows electromagnetic interaction. In fact, these two interactions commonly we put under a same basic nature that is called electromagnetic interaction. What is it Yes. called? Electromagnetic induction. So when we talk of electromagnetic interaction, it involves both electric and magnetic interaction. And since the basic characteristics that are involved there in both the interactions are the charge itself, so commonly we name them electromagnetic interaction. Got it? Yes, sir. Yes, So sir. charge, what is charge now? Charge is the basic physical characteristics due to which a particle or body shows electromagnetic interaction. So there are only four basic nature of interaction in the nature. One is gravitational, another is electromagnetic, and the two other types of basic interaction exist only inside nucleus in small range forces. Say in the force range of 10 to the power minus 15 meter, they are called nuclear forces, which are not commonly experienced. In our surrounding, whatever type of forces we are experiencing, they are either gravitational or Electromagnetic. electromagnetic. So, you know, in surrounding, if I am asking you what is the basic nature of any type of force, if it is not gravitational, it is electromagnetic. So, if I ask you what is the basic nature of frictional force, what you will say? Basic nature of electromagnetic. Electromagnetic. Anything in your surrounding which is not gravitational is electromagnetic. What is the basic nature of weight? Uh, Gravitation. Yes. So, apart from weight, every other force in your surrounding is what? Electromagnetic. Yes, electromagnetic. Okay. So, in our Yeah. surrounding, majority of forces are electromagnetic forces. If I am sitting on the chair, what is the nature of normal reaction between me and chair? If I ask you, what is your answer? Sir, can you repeat the question?
I'm sitting on a chair. What is the nature of normal reaction between me and chair? Um, Normal reaction. electromagnet. Yes, electromagnet. Everything in our surrounding that is not weight is electromagnet, right? Got it? Yes, sir. Okay. So now you can write the definition of charges. What are the charges? Charges are the basic physical characteristics due to which a particle or body shows electromagnetic interaction. Note it down. Charges are the basic. Charges are basic physical characteristics due to which a particle or body shows electromagnetic interaction. Charges are the basic physical characteristics due to which a particle or body shows Electromagnetic. Mag- Clear है? yes, sir. Okay. Now we come to electrostatics. What is electrostatics? The charge due to which we are seeing the interaction on other charges, we can call it source charge. Okay. So interaction between the charges when the source charge is at rest is called what? Electrostatics. Statics. Electrostatics. Interaction between charges the charges when the source charge is at rest is called, When it is studied under electrostatics. Interaction between the charges when the source charge interaction between the charges when the source charge or charges are at rest is studied under electrostatics. sir, in this one is at rest, another is moving. Yeah, if there are two charges, but sometimes we can have now, we can see the interaction of one charge with four charges. So those four charges will call the source charges. They have to be at rest. जिसका स्टडी हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका मोशन हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा जो सारे चार्जेस हैं उनको रेस्ट होना चाहिए. जी सर. ठीक है. कई बार ऐसा भी हो सकता है ना, हम एक चार्ज के प्रेजेंस में दूसरे चार्ज का मोशन स्टडी करें, और कई बार हो सकता है तीन चार्ज के प्रेजेंस में चौथे चार्ज का मोशन स्टडी करें. ठीक है. यस सर. तो जो चौथा चार्ज है वो भले ही मूविंग हो, बाकी तीन चार्ज पे रेस्ट करेंगे. इसलिए मैंने लैंग्वेज में क्या लिखवाया है, Interaction between charges when source charge is at rest is studied under electrostatic. हाँ, सोर्स चार्ज और चार्जेस इज एट रेस्ट. सोर्स चार्ज और चार्ज यानी सोर्स में एक चार्ज हो सकता है, एक से ज्यादा चार्ज हो सकता है. Yes sir. हाँ, इज स्टडीड अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. Electrostatics. ऐसा होता क्यों कि मूविंग चार्ज ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है. ठीक है. और वो दूसरे मूविंग चार्ज पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों क्रिएट कर देगा. तो फिर हम कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक स्टडी कर रहे हैं कि मैग्नेटिक स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अलग कर दिया गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में सोर्स चार्जेस नीड टू बी. जी सर. क्लियर है. ठीक है. तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, जो सोर्स चार्ज है उसको रेस्ट करना. ठीक है. अच्छा ये बताइए आप, प्रैक्टिकली जो चार्जेस हैं वो कैसे जनरेट होते हैं? इन आवर सराउंडिंग हाउ चार्जेस आर जनरेटेड? Sir, by rubbing things. हाँ, जैसे आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से हमारा शुरू होता है, शुरू का पूरा पन्ना इसी बात पे रहता है कि आप जब अंबर को वूल से रब कर देते हैं तो अंबर चार्ज हो जाता है. और ऐसे दो चार्ज अंबर रॉड, ग्लास रॉड को जैसे नजदीक लाएंगे आप
so they will get repelled. Okay, and when you will bring the charge rod and the wool closer, they will attract themselves. So there are two types of charges in the nature. How the charges are created? What is the phenomena that happens when you rub a wool with a glass rod? What happens? They get a charge. How? One get positive, How? another Can you explain the negative. phenomena? You know, How? in our surrounding, the majority of charges are created due to transfer of electrons. Because when we see the atom are composed of what? Neutrons, protons, and electrons. You know that? Yes, sir. And the protons and neutrons exist only inside nucleus. Yes, sir. In our surrounding, in all common phenomena, nucleus is not at all participating. Nucleus is intact. Nucleus से कुछ नहीं होता, वो intact होता है. क्या होता क्या है? जब हम किसी बॉडी को रगड़ देते हैं, रब कर देते हैं, जैसे मान लो वूल से हमने ग्लास रॉड को रगड़ दिया तो क्या हुआ? उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे आपस में. अब वूल के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो ट्रांसफर हो जाते हैं. कहाँ जाते हैं? ग्लास. हाँ, तो ग्लास रॉड क्या हो गया? फिर वो चार्ज हो जाएगा. नेगेटिवली चार्ज हो गया. और वूल क्या हो गया? पॉजिटिवली. सर ये पता कैसे लगेगा कि कौन सा नेगेटिवली चार्ज है? देखो, जो परफेक्टली इंसुलेटर होते हैं ना, जो मटेरियल परफेक्ट इंसुलेटर होते हैं, उनका अपना चार्ज में कोई चेंज नहीं आता. तो जैसे ग्लास रॉड है, परफेक्ट इंसुलेटर, उसके अपने चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा. नहीं आएगा. अब ऐसी बॉडी जैसे मान लो कुछ सिल्क के कपड़े होते हैं, ठीक है, या वुलन कपड़े होते हैं, आपने देखा होगा कई बार कि चमकते हैं, किसी चीज टकरा जाते हैं, चमक आ जाती है ना. यस. साइन कर जाते हैं. या कई बार आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे ये यूजुअली हाउसवाइफ्स को ज्यादा ये फील होता है, कई बार तुम लोगों को भी फील होता है, हम लोग को भी कई बार फील होता है, जैसे हम कोई नल टच करते हैं, झटका सा लगता है. ऐसा कभी हुआ? यस. यस सर. ये क्या होता है, कुछ कपड़े होते हैं हमारे पास जो कंडक्टर टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, जैसे वूल हो गया या सिंथेटिक कपड़े हो गए, कॉटन नहीं, नॉन कॉटन कपड़े जो होते हैं वो थोड़े कंडक्टर टाइप के होते हैं. कंडक्टर टाइप का मतलब होता है उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं मटेरियल से, ठीक है, थोड़े से एफर्ट पे वो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं. तो जैसे वूल है, तो वूल में भी ऐसा ही होता है. तो जो वूल को आप ग्लास रॉड पे रगड़ते हैं, तो ग्लास रॉड तो इंसुलेटर है, लेकिन जब आप वूल को रगड़ेंगे तो कुछ वूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस पे आ जाएंगे? ग्लास रॉड. हाँ, तो ग्लास रॉड तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और वूल क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज. तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इजीली अपना चार्ज लूज कर सकते हैं. इसमें जैसे एग्जांपल में आप जैसे वूल हो गया या सिल्क के मटेरियल्स हो गए, ठीक है, या सिंथेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है. जी. और यस जो सर. परफेक्ट इंसुलेटर होते हैं ना, वो अपना चार्ज इजीली ना लूज करते हैं ना गेन करते हैं. वो गेन कर सकते हैं लेकिन लूज नहीं करते. मतलब दूसरे मटेरियल से उनमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है लेकिन वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करते, ठीक है. तो ग्लास रॉड एक्चुअली इंसुलेटर होता है, तो उस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करता, ठीक है. यस सर. ओके. तो यस. जो मेजॉरिटी ऑफ फिनोमेना है हमारे सराउंडिंग में, जो चार्जेस क्रिएट होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं? बाय रबिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हाँ, मतलब बाय रबिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से ही होता है, क्योंकि एटम का न्यूक्लियस तो हम तोड़ नहीं सकते, पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है. तो जिनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाता है वो तो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज. हाँ. अब इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा ट्रांसफर तो होता नहीं है. ओके सर. ओके, अब क्लियर हो. ठीक है. जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना जाएगा? 5 जाएगा, 6 जाएगा, 8 जाएगा, 9 जाएगा, 9.5 तो नहीं जाएगा ना, 9.5 तो नहीं जाएगा ना. जी सर. इसका मतलब क्या हुआ? वो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देगी वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसमें. हाँ, और जिस पे जाएगा वो नेगेटिवली हो जाएगा. हाँ, तो आपका जो ग्लास रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है. जी. इसी तरह से वुल से एक और ग्लास रॉड को रगड़ देंगे और वो दोनों ग्लास रॉड को अगर हम करीब लाएंगे तो क्या होगा? मान लो वुल से एक ग्लास रॉड को रगड़ दिया, फिर वुल से दूसरे ग्लास रॉड को रगड़ दिया, ठीक है. अब उन दोनों ग्लास रॉड को जब हम लोग नजदीक लाएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? सर अट्रैक्शन होगा. नहीं, वुल से हमने ग्लास रॉड को रगड़ दिया, फिर वुल से ग्लास रॉड को रगड़ दिया, तो इसका मतलब दोनों ग्लास रॉड पर सेम नेचर के चार्ज आ गए ना, नेगेटिव चार्ज आ गए. यस सर.
आप सेम चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है या अट्रैक्शन होता है? रिपल्शन रिपल्शन। तो repel करेगा। तो जो दो चार्ज ग्लास रॉड को जब आप नजदीक लाएंगे तो क्या होगा उनमें? तो वो रिपेल करेंगे। हाँ, ठीक है। और किसी मटेरियल में चार्ज है या नहीं है इसको जानने के लिए एक इजी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, एक मेटल रॉड होता है जिसके एक एंड पे ना दो लीव्स लगे होते हैं, तो दो ऐसे प्लेट्स लगे होते हैं जो इजीली बेंड हो सकते हैं, उनको लीव्स बोलते हैं। ठीक है, मैं डायग्राम बनाऊं? यस सर यस, मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा था वो। इस टाइप का टच होता करते है। हैं तो जितना बिल्कुल बेंड होता है बिल्कुल उससे पता लग जाता है कि बिल्कुल, जैसे कितने मान लो ऐसे चार्ज। ऐसे 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 दो लिप्स लगे हुए हैं, मेटल लिप्स होते हैं, यूजुअली गोल्ड लिप्स होते हैं। जैसे हम अब ये रोड है, ठीक है, अब हमको पता लगाना है कि कोई रॉड है वो चार्ज है या नहीं है। ये मेटल रॉड है, इसके नीचे दो लिप्स लगे हुए हैं। अब हमको पता लगाना है क्या, जैसे मेटल रॉड है, ये चार्ज है कि नहीं है। तो मान लो इस पे जो चार्ज होगा, तो जैसे इसको टच करेंगे तो ये तो कुछ भी कंडक्टर है तो चार्ज मूव करके यहाँ आ जाएंगे। अब जैसे ही चार्ज आएंगे, जैसे जो भी चार्ज यहाँ है मेटल रॉड पे है, मतलब ये इस रॉड पे चार्ज है मान लो, वो चार्ज मेटल के थ्रू मूव करके यहाँ आ जाएगा ना भाई, ठीक है। यस सर। तो जैसे ही ये चार्जेस आ जाएंगे तो दोनों पे सेम नेचर के चार्जेस आएंगे तो क्या हो जाएगा, इनपे रिपल्सन हो जाएगा ना। रिपेल करेंगे हाँ सर। हाँ, ये ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा बेंड हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि जिस मेटल को हमने टच किया वो चार्ज था या। अनचार्ज। और इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। यस, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ये एक कॉमन सी बात है। एक्चुअली देखो, थ्योरी के हिसाब से ना एनसीईआरटी के इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जब वो आईटी का पेपर डिजाइन करते हैं ना मेंस का, तो उसमें ये बातें ध्यान रखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमने एनसीईआरटी में दी है, उसको कई बार यूज करते हैं। ठीक है, ओ तो छोटी यस। छोटी बातें भी जो एनसीईआरटी में थ्योरी की तरह दी रहती है वो इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि कई बार वो सीधा एज इट इज उसको मेंशन कर देते हैं, और कई बार बच्चे कॉन्सेप्चुअली तो अच्छे होते हैं मगर कुछ बातें नहीं जानते हैं। हमारा इलेक्ट्रोस्कोप वर्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप वर्ड बहुत अच्छे अच्छे बच्चे नहीं जानते, पता है आपको। ठीक है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे लेकिन इलेक्ट्रोस्कोप वर्ड पता नहीं होता। कई बार सीधा वर्ड ये डाल देंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, छोड़ देंगे। ठीक है, तो सर इसके बेस पे वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? नहीं जैसे चार ऑप्शन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इज यूज्ड टू मेजर द चार्जेस। ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो ये यस मैग्नीट्यूड सर। ऑफ चार्जेस या नेचर ऑफ चार्जेस, इस टाइप। ठीक है, ओके। यस ठीक। हाँ, तो कई बार इस चीज को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। ठीक है ना। जी सर। अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फंडामेंटली क्या है कि नेचर में हमारे जो भी चार्जेस हैं, हमारे सराउंडिंग जितने भी चार्जेस हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। जब आप रब करते हैं तो एक्चुअली आप क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही कैरी आउट कर रहे हो। ठीक है, जी सर। और इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा जब भी ट्रांसफर होगा तो कंप्लीट नंबर में ट्रांसफर होगा। इफ द यस इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड इन कंप्लीट नंबर, व्हाट डज दिस मीन? मतलब सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जो मतलब जो चार्ज बॉडी जब रब नहीं, करेंगे। कंप्लीट नंबर का मतलब ये तो मान लो चार्ज इलेक्ट्रॉन गया 5 इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज से कम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में? जी सर। क्या किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज एग्जिस्ट करता है उसी के मल्टीपल में होगा ना। यस सर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन। हाँ, और मान लो एक मेटेरियल में 5 कूलम चार्ज है, दूसरे में 3 कूलम चार्ज है, दोनों को ज्वाइन कर दिया, एक कंडक्टर है मान लो। ऐसा मेटेरियल जिसमें चार्ज इजीली बॉडी के अंदर फ्लो होता है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। और जिसमें चार्ज का फ्लो विद इन द बॉडी नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर। तो मान लो एक कंडक्टर पे 5 कूलम चार्ज है, एक कंडक्टर पे 3 कूलम चार्ज है, और दोनों कंडक्टर को ज्वाइन कर देंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 8 कूलम। 8 कूलम हो जाएगा, यानी चार्जेस ऐड हो गए। जी सर। ये हो गया एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या हो गया? एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब आप एक काम करो, एक कंडक्टर पे मान लो 5 कूलम चार्ज है और दूसरे पे -3 कूलम चार्ज है, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तब नेट चार्ज कितना हो गया? सर 2 कूलम। 2 कूलम। यानी अब तो पहले कितना था टोटल चार्ज? पहले पहले एक में 5 था, दूसरे में -3 था। तो टोटल चार्ज कितना था?
पहले 8 था। नहीं, ध्यान से सोच के जवाब दो। एक में +5 कूलम था, एक में -3 कूलम था, टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज तो सर 2 कूलम हो जाएगा। हाँ, और अभी भी 2 कूलम ही है, यानी नेट चार्ज, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज तो कांस्टेंट रहा ना, ओके ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ, और चार्जेस खाली मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट करेंगे, जी सर। यानी कभी भी चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम चार्ज कहीं एग्जिस्ट कर सकता है क्या? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। किसी भी मटेरियल का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? नो सर। नहीं कर सकता, यानी कि जब भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन में ही तो एग्जिस्ट करेगा। यस। मान लो 100 इलेक्ट्रॉन है, 1000 इलेक्ट्रॉन है, 1001 इलेक्ट्रॉन है, 1002 इलेक्ट्रॉन है, 1000.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं हुआ ना, 1000.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं हुआ ना भाई। यस सर। इट मींस व्हाट? इट मींस चार्जेस कैन ओनली एग्जिस्ट इन मल्टीपल ऑफ, इंटीजर। हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसी को क्वांटाइजेशन बोलते हैं। ओके सर। क्वांटाइजेशन समझते हो तुम? क्वांटाइजेशन। हाँ, मतलब क्वांटाइजेशन क्या है? जैसे मान लो ह्यूमन हाइट है, किसी आदमी का जो हाइट है वो लगातार बदलता है, धीरे धीरे बदलता है कि एकाएक बदल जाता है? सर धीरे धीरे। हाँ, अच्छा मान लो तुम्हारा हाइट जो है, एज्यूम कर लेते हैं तुम्हारा हाइट कितना है, बताओ, बड़ी जो हाइट। सर सर 5'8". 5'8" है, ठीक है। अच्छा बताओ, एक साल पहले तुम्हारा क्या हाइट था? सर एक साल पहले तक 5 5 5'5" था। नहीं सर 5 हो एक साल पहले। अच्छा, और उसके 8 महीने पहले? उसके 8 महीने पहले सर 4.8 4.9 ऐसे हो। हाँ, और 4.8 मान लो, नहीं अभी से 8 महीना पहले। अभी से 8 महीने पहले तो सर हाँ 5.2 5.3 हो गए। अच्छा, नहीं अभी तुमने बताया कि 5 फीट 4 इंच रहा होगा एक साल पहले ना? सर 5 फीट एक साल पहले। एक साल पहले 5'8" था, अभी कितना है? सर नहीं एक साल अभी 5'8" है। एक साल पहले 5 फुट होगा। एक साल पहले 5'5" रहा होगा, ठीक है। 8 महीने पहले कितना रहा होगा? अभी से 8 महीने पहले? अभी से 8 महीने पहले सर उनके बीच में ही होगा मतलब कि। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो हाइट है वो तो लगातार बदला होगा ना भाई। यस सर। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि तुम्हारा हाइट 5 फीट 5 इंच है और अगले दिन तुम उठे तो 5 फीट 6 इंच हो गया। नो सर। हाँ, यानी तुम्हारा जो हाइट का चेंज है वो कंटिन्यूअस है, 5 फीट 5 इंच रहा होगा, 5 फीट 5 इंच, और 0.1 इंच रहा होगा, 0.2 इंच रहा होगा, इस तरह से बड़ा होगा। यस सर धीरे धीरे। मतलब कंटिन्यूअस बड़ा होगा। जो भी छोटे से जी छोटे सर। यूनिट होता है उसमें वैल्यू लिया होगा, उसके बाद वाली वैल्यू लिया होगा, उसके वैल्यू। मान लो कि हम ऐसा कहेंगे, मान लो ह्यूमन हाइट जो है वो क्वांटाइज हो गया और क्वांटाइजेशन यूनिट 1 सेंटीमीटर, क्या है? 1 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब होगा पता है? किसी भी आदमी का हाइट ना सेंटीमीटर के मल्टीपल में ही एग्जिस्ट कर सकता है, यानी किसी आदमी का हाइट 175 सेंटीमीटर हो सकता है, 170 सेंटीमीटर हो सकता है, 166 सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन 166.5 सेंटीमीटर नहीं है। इज इट पॉसिबल? नो सर। इसका मतलब क्या हुआ? ह्यूमन हाइट इज नॉट क्वांटाइज, इट कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज, राइट? ओके सर। तो कोई चीज कंटिन्यूअसली वैरी कर सकती है, सारी वैल्यूज ले सकती है, लगातार वैल्यूज ले सकती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस वैल्यूज ले सकती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट क्वांटाइज। क्या बोलेंगे? नॉट नॉट क्वांटाइज्ड। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी स्पेसिफिक वैल्यू ही ले सकता है और उसी का मल्टीपल ले सकता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटाइज। क्वांटाइज्ड। जी सर। ठीक है ना भाई? यस सर। हाँ, तो बताओ चार्ज क्वांटाइज है कि का क्या मतलब हुआ? कि सर इंटीग्रल मल्टीपल पे बढ़ेगा। हाँ, किसी फिक्स क्वांटिटी के मल्टीपल में अगर कोई चीज एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइज। क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ हाँ, चार्ज। मतलब किसी मिनिमम फिक्स क्वांटिटी के मल्टीपल में अगर कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइज, और अगर वो ऐसा नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट क्वांटाइज। नॉट क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो चार्ज क्वांटाइज होता है, क्यों होता है समझ में आया? यस सर। हाँ, अब चार्जेस की प्रॉपर्टी लिख लीजिए, लिख लीजिए।
या ये अभी जो जितनी बातें मैंने कही है ना इनफॉर्मल लैंग्वेज में, उन सबको फॉर्मल कर देते हैं, करें? Yes, sir. लिखो इन आवर सराउंडिंग, in our surrounding, majority of charges are created due to transfer of electrons. In our surrounding, majority of charges are created due to transfer of electrons. Yes, sir. In our surrounding, majority of charges are created due to transfer of Electron. electrons. Okay. Okay. The body with excess of electrons are negatively charged. Body with excess of electrons are negatively charged, Yes. and electron deficients are Positively charged. पॉजिटिवली चार्ज। ओके, यानी जिस भी मेटेरियल पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाता है वो तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं वो Positively charged. पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। ठीक है भाई? जी sir. ठीक है। देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। Yes, sir. ठीक है, वन लिखो, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज Additive. एडिटिव, क्या मतलब हुआ? सर मतलब उनका ऐड हो जाता है, वो ऐड करने का नेचर होता है। हाँ, और अगर सेम नेचर ऑफ चार्जेस रहेंगे दो मटेरियल पे और उनको कांटेक्ट में ले आएंगे तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? उनका टोटल सम हो जाएगा। यस। ठीक है। यस सर। हाँ, पहला प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी है चार्जेज आर कंजर्व्ड। दूसरा प्रॉपर्टी है चार्जेज आर कंजर्व। ये लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि प्रॉब्लम में काफी सारी जगह यूज होता है। ठीक है, द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्जेज आर कंजर्व्ड। यस सर। interaction of two or more than two charge bodies, बॉडीज। यस सर। in interaction of two or more than two charge bodies, net charge remains constant. Net charge remains constant. We call it कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये ए है, हाँ, ए पे शुरू में जो चार्ज है ना तो मान लो 5 कूलम है, क्या है? 5 कूलम। बी है, बी पे शुरू में चार्ज है -2 कूलम, और सी है, सी पे शुरू में चार्ज है 1 कूलम। ठीक है भाई, अब इनमें आपस में इंटरेक्शन हो गया, और इंटरेक्शन के बाद जो ए का चार्ज हो गया वो हो गया 2 कूलम, और बी का हो गया 1 कूलम। बताइए सी का क्या चार्ज होगा? सर 1 कूलम। ध्यान से सोच के जवाब दो। शुरू ऊपर वाले जो चार्जेस हैं वो इनिशियल चार्जेस बता रहे हैं इंटरेक्शन से पहले।
फिर ए और सी में इंटरेक्शन हो गया, इंटरेक्शन के बाद ए और बी का चार्ज में दिया होगा, सीधा बता दो यस क्या आंसर है। सर उनका टोटल तो 4 कूलम आएगा, तो नीचे भी उनका भी टोटल 4 कूलम ही आएगा, तो वो 3 कूलम है, तो वो 1 कूलम भी हो जाएगा सी का। हाँ आंसर क्या हो गया, 1 कूलम। आंसर ही हुआ। क्लियर है। यस सर। हाँ, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यस। यानी दो या दो से ज्यादा बॉडी के बीच में आपस में जो चार्ज शेयरिंग हुआ तो टोटल चार्ज काउंट करेगा, तो जितना शुरू में वही बात है, तो बोलते हैं हम लोग क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है भाई। ओके, तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड। ये तो प्रॉपर्टी जैसे बोर्ड बोर्ड में नोट्स बनाने के लिए भी आता है, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यस। ठीक है। सिंस चार्जेस आर ओनली क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, since charges are only created due to transfer of electrons, since charges are only created due to transfer of electrons, इलेक्ट्रॉन। यस सर। since charges are only created due to transfer of electrons, they exist in multiple of charge on electron, they exist in integral multiple of charge on electron, they exist in integral multiple of charge on electron, इलेक्ट्रॉन। यस। ठीक है। यानी लैंग्वेज में अगर हम इसको लिखें, किसी भी बॉडी में चार्ज अगर Q है तो Q इक्वल टू व्हाट, एन हाँ प्लस माइनस सी। एन, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, यस। क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। यहाँ एन क्या है, सर नंबर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर। और ई द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू क्या होती है पता है, सर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कूलम, यस। ठीक है। ठीक है भाई, चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। ओके, ओके सर। हाँ, बट प्रैक्टिकल कंसीडरेशन के हिसाब से 1 कूलम इज अ वेरी लार्ज चार्ज, यस। क्यों बताओ, from practical considerations 1 coulomb is a very large charge, why, सर क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन की जो मतलब जो स्टडीज वगैरह होती है उसमें बहुत मतलब छोटे छोटे चार्जेस होते हैं। इसका कारण ये है कि मान लो हम लोग दो चार्जेस जो 1 कूलम को अगर 1 मीटर रख देंगे तो कितना फोल्ड रहेगा, कूलम लॉ के हिसाब से 10⁹ न्यूटन के ऑर्डर का फोर्स होगा, तो बहुत बड़ा फोर्स है, तो एक कूलम बहुत बड़ा चार्ज है हमारा, समझ आया। दो मोस्ट। दो 1 कूलम को अगर 1 मीटर पे रख देंगे तो कूलम लॉ के हिसाब से बहुत बड़ा फोर्स है, तो 9 × 10⁹ न्यूटन, ये बहुत बड़ा फोर्स है, ठीक है। इसलिए 1 कूलम इज वेरी लार्ज चार्ज। सराउंडिंग में जो प्रैक्टिकल केस में चार्जेस होते हैं वो माइक्रो कूलम मिली कूलम के ऑर्डर के रहते हैं, ओके। ओके। ये जो रबिंग वगैरह ये जो क्रिएट होते हैं बहुत छोटे छोटे चार्जेस होते हैं, ठीक है। यस। ओके, तो ये हो गया चार्ज की प्रॉपर्टी, क्लियर है, ठीक है। जी। अब हम लोग आते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, कूलम्स लॉ, क्या है, कूलम्स लॉ। अब दो तरह के चार्ज का नेचर पता चल ही गया, ठीक है ना। कूलम्स लॉ क्या कहता है पता है, व्हाट इज सेड बाय द कूलम्स लॉ, तो हम लोग कूलम्स लॉ पे आ जाते हैं, यस सर। तो वी आर मूविंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में दो बातें
एक तो क्वांटिटेटिव फॉर्म है और एक वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। क्वांटिटेटिव फॉर्म क्या है, लिख लो, interaction between two charged particles is given as F equal to K Q1 Q2 by R square, K Q1 Q2 by R square, ठीक है भाई, ठीक है, right? Yes sir. And is attractive in similar nature of charge and repulsive in Sir opposite nature of charges. सर उल्टा नहीं बोल दिया. Oh, sorry. It is opposite in same nature of charges and attractive in opposite nature of charges. Yes sir. Force between two charged particles is given as F equal to K Q1 Q2 by R square. It is repulsive in same nature of charges and attractive in opposite nature of charges. Nature of charges. Yes. ठीक है, यानी अगर Q1 Q2 दोनों का नेचर अगर सेम होगा तो अगर मान लो दोनों प्लस है तो भी प्लस ही हो गया, दोनों माइनस है तो भी प्लस ही हो गया, फोर्स प्लस हो गया, तो फोर्स प्लस का मतलब रिपल्सिव, क्या Repulsive. और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो माइनस हो गया, नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, Attractive. तो ये तो क्वांटिटेटिव फॉर्म है। K क्या है, K is a constant. हाँ, K is a material dependent constant, ठीक है, ओके। Yes sir. लिख लो, K के बारे में लिख लो, मैं ज्यादा इसमें डीप में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पिछली बार आईआईटी में क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो K की वैल्यू को लेकर के आया था और उसमें उन्होंने बड़ा ऑब्वियस सा मतलब दे दिया था जो नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए, लेकिन अब आईआईटी का है, पैटर्न वही है तो वही लिखे। Here K is a material dependent constant. K is हाँ, where K is a material dependent constant given as K equal to 1 by 4 pi epsilon, ठीक है। Here K is a material dependent constant given as what, K equal to 1 by 4 pi epsilon, ठीक है, राइट। अब एक बात और लिख लो, epsilon is called permittivity of the medium. Epsilon is called permittivity. is called Permittivity of the medium, ठीक है। Epsilon is called permittivity of the medium, ठीक है। In vacuum it is represented as epsilon naught. In vacuum it is represented as epsilon naught. हाँ, और जो 1.4 pi epsilon naught की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 1/4 pi epsilon naught equal to 9 into 10 to the power 9 SI unit. SI unit का मतलब क्या हो गया, can you tell me what is SI unit of K? K न्यूटन नहीं, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, कैसे हुआ, यस सर। सर वो कैंसिल हो जाएगा और न्यूटन में जाएगा, फोर्स की क्वांटिटी, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन में जाएगा। यस, आर स्क्वायर तो नीचे ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा और Q1 Q2 Q कूलम स्क्वायर नीचे चला जाएगा, ठीक है, नहीं, यस सर क्लियर है। तो जो K का यूनिट होगा ये होगा, और वैक्यूम में K की क्या वैल्यू हो गई, 9 into 10 to the power 9। हाँ, अब जानते हो एक और टर्म होता है हमारे पास यहाँ पे, रिलेटिव परमिटिविटी, क्या होता है, लिख लो यहाँ पे, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, is called relative permittivity represented as epsilon r. Epsilon by epsilon naught is called relative permittivity of the medium.
है भाई? yes Epsilon by epsilon naught is called relative permittivity VT of the medium and given as epsilon by epsilon naught is equal to epsilon r. yes ठीक है? तो epsilon by epsilon naught और naught को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी. कैसे डिस्क्राइब करते हैं? epsilon by epsilon naught is equal to epsilon. ठीक है? okay sir हाँ, यानी epsilon को अगर हम लिखना चाहें तो epsilon naught into epsilon r भी लिख सकते हैं, राइट? yes ठीक है? अच्छा ये बताओ, अगर किसी मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी अगर 3 है, क्या है? 3 3 है, तो आप बता सकते हैं कि उसका k का वैल्यू क्या होगा उस मटेरियल का? k का x एक सेकंड सर यस सर एक सेकंड सर 3 into 10 to the power 9 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ठीक है? yes sir ओके. okay अरे ये बताओ, दो चार्ज पार्टिकल आइडेंटिकल चार्ज की हैं, ठीक है? ओके, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर. एक क्वेश्चन की तरह लिखो. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, लिखो जरा क्वेश्चन. yes टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स charge are placed at separation of 1 meter. separation of 1 meter हाँ, two identical charge particles are placed at separation of 1 meter ठीक है? yes In vacuum. thank you ठीक है? okay sir Force between them is yes sir force between them is 9 into 10 to the power 9 Newton. कितना? yes sir हाँ. What is the magnitude of their charges? into 10 to the power 9 What is the magnitude of their charges? उनके charges का magnitude क्या है? sir 1 coulomb Yes, यही 1 कूलम का डेफिनेशन है, पता है तुमको? इसलिए मैंने इसको स्पष्ट करवा दिया. तो यही 1 कूलम का डेफिनेशन है. क्या डेफिनेशन है 1 कूलम का? sir uh, when two particles are placed at a Identical charge particles. When two identical charge particles are placed at separation of 1 meter in vacuum in then vacuum, and force between them is 9 to 10 power 9 Newton. That means then the charge is said to be 1 coulomb yes. ठीक है? यही 1 कूलम का yes डेफिनेशन. ठीक है? okay ओके. sir हाँ, मैं वैल्यू वाइज yes तो और भी कुछ करा सकता था. जैसे मैंने अगर 2.25 करा देता तो क्या चार्ज हो जाता? मतलब फोर्स को 2.25 into 10 power 9 न्यूटन रख देता तो क्या हो जाएगा? 2.5 yes तब की वैल्यू क्या आएगी?
सर 1 2 3 सर 5 नहीं, फोर्स अगर मैं 2.25 इंटू 10⁹ न्यूटन लग देता तो चार्ज क्या आ ओ जाता ओ है? ओ एक सेकंड सर हाफ हाँ बिल्कुल। तो मतलब कहने का मतलब वैल्यू वाइज तो कुछ भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 कूलम का डिफिनेशन क्या है, दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल को अगर आप 1 मीटर पे रखेंगे और उनके बीच का फोर्स अगर 9 न्यूटन है, इसका मतलब चार्जेस आर 1 कूलम, राइट? डिफिनेशन है, ठीक है यस भाई? ठीक है, तो ये हो गया कूलम्स लॉ का जनरल फॉर्म। अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे तो क्या होगा? रिपल्सिव। दोनों और रिपल्सिव यस ऑपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्टिव ठीक है भाई। अब यहाँ पे ना एक वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म क्या है वो मैं तुमको समझाऊंगा। वेक्टर फॉर्म ये है, मान लो ये कोई पॉइंट है, इसको मैंने ओरिजिन, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, ठीक है? और यहाँ मान लो Q1 है, चार्ज पार्टिकल Q1, और Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैंने R1 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? R1 और दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ है, इसको मैंने नाम दे दिया क्या? R2 Q2 है, ठीक है? सो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2? ठीक है, तो फोर्स बताना है आपको। सर Q1 into Q2 by फोर्स ऑन Q2 2 ड्यू टू 1 पूछ रहे हैं, वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे आर वेक्टर हो गया Q1 से Q2 का गैप, ये फॉर्मूला हो जाएगा, देखो ऐसे लिखेंगे के, तो ठीक है, Q1 ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिख रहे हैं, ठीक है भाई? yes by R2 Q2 माइनस minus Q1 R2 माइनस R1 okay R2 minus अपॉन R2 माइनस R1 की मॉड का Q। समझ में आ रहा है? This is the yes vector form of force on second particle due to first particle. Is that clear? yes sir ये Q1 से Q2 लाइन की तरफ है, यानी ये जो एरो मैंने बनाया उसी की तरफ से, यही है, इसी एरो का डायरेक्शन है। इसमें यही फर्क, मैग्नीट्यूड वाइज तो यही चीज है, बट यहाँ डायरेक्शन इंक्लूड कर लिया। समझ आ रहा है क्या? yes sir यानी कभी भी अगर मैं वेक्टर फॉर्म में फोर्स पूछूंगा तो ये हो गया, तो ये कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया। This is the vector form of Coulomb's law. It is force on 2 due to 1, ये भी लिख लेना। Force on second particle due to first particle, ठीक है? जी सर हाँ, जब आपका आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछा जाएगा तो ऐसे करेंगे आप, चाहो तो ऊपर में आप ब्रैकेट से डाल दो R2, ठीक है? डन सर हाँ, तो कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं ना, पोजीशन वेक्टर दे दिया जाएगा और फोर्सेस पूछा दिया जाएगा, बता दोगे? yes ठीक है, तो कर लोगे ना, कराने की जरूरत तो नहीं है। yes sir no sir हाँ, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल हो जाए तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? सर पहले 2 का निकालेंगे फिर उसके बाद 1 आ जाएगा उसके 2 उसके अगले का निकालेंगे हाँ, मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखना है, उसके सराउंडिंग में अगर एक से ज्यादा चार्ज है तो सभी का फोर्स निकाल के वेक्टर सम कर देना, ठीक है? ओके यस लिख लो इस बात को। If we have to see the electrostatic force, if we have to see, if we have to get, if we have to get the net electrostatic force on a charged particle, we have to get the net electrostatic force on a charged particle due to 2 or more than 2 charges in surrounding. If we have to get
electrostatic force on a charged particle due to two or more than two charged particles in the surrounding is given as F equal to क्या is given as particle density. F equal to sigma Fi. क्या मतलब हुआ? सम मतलब हाँ, vector sum of forces due to surrounding charge particles. Vector Yes. sum of forces due to surrounding charge particles. Right? यस तो सराउंडिंग में जो भी चार्ज पार्टिकल होंगे उनका हम लोग वेक्टर सम निकालेंगे. जी सर ठीक है? राइट? यस तो इसको हम लोग यहाँ बाद में यूज करेंगे. इनफैक्ट जो फोर्स को स्टडी करने का जो पॉपुलर तरीका वो फील्ड का है. तो पहले फील्ड पे आएंगे तो हम करेंगे. अभी मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे ले लेता हूँ जैसे पुराने आरटी के क्वेश्चन आ चुके हैं और उसमें इंटरेक्शन फोर्स को फोर्स की तरह ही कई बार यूज करते हैं. ठीक है ना भाई? तो जैसे हमारे पास पहले फोर्सेस पता होते थे ना, वेट होता था, टेंशन होता था, नॉर्मल डिक्शन होता था, ये सब फोर्सेस पता थे ना. यस उसी तरह से अब स्टैटिक फोर्स भी एक फोर्स आ रही है. जब एफईडी बनाएंगे तो उनका ध्यान रखें. ओके ठीक है? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं. देखो यस सर two charged particles of masses two charged particles of same mass, two charged particles of same mass, two charged particles of same mass, say m, two charged particles of same mass, से एम say m, and charges q and 2q. चार्जेस क्यू एंड 2q Okay, are suspended from a common point to identical strings, each of length L. suspending common point yes sir Through identical strings, each of length L right? yes Their angle with the vertical under equilibrium is theta 1 and theta 2. ठीक है? yes Right? yes ठीक है? Okay, ये दिया हुआ था. दोनों का मास सेम है ना? जी सर एम हाँ. पूछा जा रहा है आपसे. What is sin theta 1? Upon sin theta 2. ये बताएं. थीटा 1 Right. Sin theta 1 upon. दोनों का मास सेम है. चार्जेस डिफरेंट है. स्ट्रिंग का लेंथ L है. दिख रहा है क्या? यस सर देख तो बताइए कैसे करें. सस्पेंडेड फॉर्म What is sin theta 1 upon sin theta 2?
सर सर 1 कैसे? सर मैंने दोनों का मतलब फोर्स इक्वेट करा, जैसे कि कैसे करा? उनकी स्ट्रिंग में उनके ऊपर टेंशन तो हम्म? दोनों स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा होगा सेम। ठीक। ऐसा क्यों? टेंशन सेम क्यों? मतलब चार्जेस तो अलग अलग है ना भाई। तो अगर मैं ऐसा मान लूँ, ये पॉइंट में जो है, तुमने 11th में आईआईटी के साथ तैयारी की थी? बताओ। अच्छा इसमें बताओ, क्या दोनों चार्ज पार्टिकल को मिला के एक सिंगल सिस्टम मान सकते हैं? मान लो पूरा सिस्टम रेस्ट पे आ गया, तो जरूरत पड़ने पे हम 2 चार्ज पार्टिकल 3 चार्ज पार्टिकल को मिला के, अगर सारे सिस्टम के सारे पार्टिकल रेस्ट में हो तो उनको सिंगल बॉडी मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? बोलो। सर फिजिक्स में थोड़ा वीक तो। सारे चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे यस एक सर। बात बताना चाह रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। होगा तो वही जो तुम बोल रहे हो, लेकिन उसका अगर मैं मास को चेंज कर दूंगा तो बदल जाएगा, पता है? जब मैं मास को चेंज कर दूं तो मेरा आंसर बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंडा क्या है, देखो यहाँ पे मैं बताऊँ तुमको फंडा क्या है। फंडा ये है कि, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। हाँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फंडा यस क्या सर। है, यस। कि अगर दोनों चार्ज पार्टिकल मिला के अगर मैं सिस्टम मान लो, ठीक है, तो बताओ इनमें एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या है? तो सर पहले तो एक नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक mg फोर्स। लग रहा होगा। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है कि इंटरनल फोर्स है? अगर मैं इनको सिस्टम मान लूँ, पूरे सिस्टम को जो टेंशन लग रहा होगा इसमें, वो तो उसे ही पास करेगा ना। मतलब यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा T1 मान लो, यस। यहाँ मान लेते हैं T2 है, क्या है? ये T1 T2 कहाँ से पास कर रहा होगा? O से। ओ से। यस। तो T1 T2 का कुछ टॉर्क होगा O के वक्त? नो। नहीं होगा। कोई भी फोर्स अगर उसी पॉइंट से पास करती है जिसके वक्त टॉर्क निकाल लें, तो टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, R प्लस जीरो हो जाएगा ना। ठीक है। यस। अब ये जो इनको ज्वाइन करने वाला लाइन है, ये मुझे चलो पता नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है, मे भी नहीं, ठीक है भाई। जी। ओके, तो जो भी है, लेकिन एक बात तो पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इसी लाइन के अभी लग रहा होगा, नहीं? यस। तो बताओ एफ का टॉर्क नेट क्या हो जाएगा? दोनों एफ मिला करके नेट टॉर्क हो गया, और क्या होगा? दोनों। हमेशा एक बात ध्यान रखो, जब एक्शन रिएक्शन और पेयर ऑफ फोर्सेस होते हैं ना, तो उनका नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के बाद जीरो होता है। क्यों? एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस का नेट टॉर्क हमेशा जीरो होता है। क्यों होता है? सर एक
क्लियर है ना, फोर्स आइडेंटिक सेम लाइन पे होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक का जितना टॉर्क आएगा दूसरे का अपोजिट आ जाएगा। यस इसको ध्यान में रखो, रिएक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस का नेट टॉर्क हमेशा जीरो होता है, ठीक है। यस यानी अभी ये वाला भी वो वाला भी मिला के देखेंगे तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टेंशन का जीरो हो गया। अब बचा कौन सा फोर्स, mg। यस सर। मान लेते हैं ये मास m1 है, क्या है, बाद में वैल्यू एम सेट करते हैं, m1g यूं लगेगा ना भाई, लगेगा। यस तो अब बताओ m1g का जो टॉर्क होगा वो इस सेंस में आ जाएगा ना, ओ के अबाउट अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, कितना टॉर्क आएगा m1g का, ये आ जाएगा m1g sin l sin थीटा 1, राइट। यस किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज, ओ के अबाउट। यस और m2g का L2 सर, तो फिर M2G sin थीटा 2, अपोजिट सेंस में, यस इसका इस सेंस में आएगा ना भाई, नहीं। यस सर यस अच्छा, अल्टीमेटली तो इक्विलिब्रियम में होना है ना पूरे सिस्टम को, तो ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी तो, यस यानी क्या आ गया, sin थीटा 1 बाय sin थीटा 2, कितना आ गया, m2 बाय m1 आ गया। यस अच्छा, यहाँ पे मासेस क्या दिए हैं, इक्वल तो क्या हुआ, तो बना जाएगा। हाँ। अब ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में चार्ज वैल्यू डिफरेंट होगा, मास सेम रहेगा तो एंगल सेम होगा, राइट, यस ठीक है, ओके। सर, एक बार फिर से इस क्वेश्चन का मतलब ओवरव्यू कर दीजिए बस। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग पूरे दोनों पार्टिकल को मिला के सिस्टम मान लेना, तो यस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इंटरनल फोर्स है, नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, यस सर और T1 T2 का जो टॉर्क है वो ओके वॉट जीरो हो जाएगा। यस तो ओके वॉट अगर हम लोग टॉर्क देखें m1 का होगा और m1g का होगा और m2g का होगा, जी सर तो m1g का जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में होगा, कितना होगा, m1g l sin थीटा 1, और m2g का जो टॉर्क होगा वो होगा क्लॉकवाइज में और m2g l sin थीटा 2 होगा, कितना, m2g l sin थीटा 2, मतलब l m2g l, ठीक है भाई, m2g l क्या sin थीटा 2, क्या l छूट गया देखो, राइट। यस तो दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, ठीक है, यस सर क्या रेशियो आ गया, 1 sin थीटा 1 बाय sin थीटा 2 इक्वल m2 बाय m1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे m2 m1 सेम दिया हो तो 1 आ गया। अगर डिफरेंट दिया होता तो क्या करते हैं हम लोग, sin थीटा 1 और sin थीटा 2 का रेशियो बता देते ना, M2/M1 यस सर हाँ, यानी जैसे ये मास है हम और उसको 2 रख देते तब क्या आ जाता, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा, साइन साइन हाँ थीटा हाँ, मतलब sin थीटा 1 थीटा 2 तो बराबर है ना भाई, जिस, चलो sin थीटा 1 की वैल्यू पूछ रहे हैं, बताओ क्या होगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा 1, मतलब ये तो पता चल गया कि थीटा 1 थीटा 2 बराबर है। नाउ पार्ट बी, सर साइन थीटा 2 हो जाएगा। नहीं वो तो बराबर है, वो तो पता चल गया मुझे, ठीक है ना, वो तो कंपैरिजन हो गया ना, वैल्यू पूछ रहे हैं आप इसी इंफॉर्मेशन देगा। तो व्हाट इज sin थीटा 1, sin थीटा 1 sin थीटा 2 थीटा हो गया, यानी एक ही बात हो गई। अब वैल्यू क्या होगी इसकी, सर साइन 90 नहीं इसकी वैल्यू बतानी है तुमको, तुमको क्या क्या दिया हुआ है, m1 दिया हुआ ना, m, तुम्हें क्वेश्चन यस सर में m q l m 2 q l दिया हुआ है, तो थीटा की वैल्यू बतानी है, sin थीटा की वैल्यू बतानी है, बताइए क्या होगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा, सर मैं एक मिनट थोड़ा कंफ्यूज हो गया।
ये पार्ट ये तो क्लियर था ना बिल्कुल। यस हाँ, अब पार्ट ए में हमको ये मिल गया कि साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 बराबर है, ठीक है ना, मतलब थीटा 1 अगर थीटा थीटा 2 भी थीटा होगा, राइट, ये बात तो मिल गई ना मुझे। यस सर। अब मैं पार्ट बी में ये पूछना चाह रहा हूँ कि साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या है, वैल्यू अभी तो रेशियो निकाला ना हमने। जी सर। हाँ, तो अब साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, हमको एन दिया हुआ, क्यू दिया हुआ, एल दिया हुआ, एन दिया हुआ, 2 क्यू दिया हुआ और एल दिया हुआ, तो जो इनिशियल इंफॉर्मेशन था वो दिया ही हुआ है। अब मुझे थीटा को अगर क्वांटिफाई करना है तो कैसे करेंगे। हमारे पास ना जानते हो जैसे मेंस और एडवांस वगैरह में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक खाली फोर्स की तरह यूज करते हैं, यानी जैसे हम लोग टेंशन होता था, एनर्जी होता था, है ना, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया। फोर्स भी एक फोर्स है, और वो लेकर के हमको जैसे सोचते थे वहां पर टॉर्क वगैरह उस टाइप से भी सोच सकते हैं। स्ट्रिंग से बंधा हुआ कोई भी पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में होता है ना, तो स्ट्रिंग के जो परपेंडिकुलर जो फोर्स होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, तो तो बस हमेशा यूज करें। If a particle bound to a string is under equilibrium, the forces perpendicular to string balances each other. यहाँ यस, पे जैसे M1 की बात करें तो बताओ स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर क्या क्या फोर्सेस हैं। तो सर स्ट्रिंग के एक m1g इक्वल्स टू हाँ, ये l लाइन हो गया परपेंडिकुलर लाइन हो गया। l sin थीटा 1। हाँ, तो एक काम करते पहले तो एंगल की बात कर लेते हैं, ये थीटा 1 है, ये हो गया 90 में थीटा 1, और ये वर्टिकल लाइन वगैरह को ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा 1, ये 90 थीटा 1 हो गया ना, देखो ये भी थीटा 1 हो गया, राइट, समझ रहा है। तो ये जो F1 का कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, मतलब Fe का, Fe sin theta 1, so we are getting Fe sin theta 1, Fe sin theta 1, Fe sin थीटा। सर ये हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया। हॉरिजॉन्टल में स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, Fe हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था ना, यस। क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 बराबर था, तो जितना वर्टिकली नीचे ये है उतना ही वर्टिकली नीचे ये है, यानी दोनों का लाइन जॉइनिंग हॉरिजॉन्टल हो गया ना। नहीं आई बात समझ। आगे सर। तो Fe का जो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, Fe cos थीटा 1, सॉरी Fe cos थीटा 1 नहीं, Fe Fe cos थीटा 1, क्योंकि देखो ऐसे सोचा मैंने, एंगल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या चीज सर? एंगल कैसे लिया है समझ में आ रहा है, ये एंगल थीटा 1 कैसे हुआ समझ में आया। यस सर यस। तो Fe का कंपोनेंट इस तरफ कितना हो गया, Fe cos थीटा 1, जी सर। राइट, यस। Fe cos थीटा 1, और mg का कंपोनेंट इस तरफ क्या, mg sin थीटा 1, जी ठीक है, जी सर। यानी क्या आ गया, tan थीटा 1 इक्वल टू व्हाट, Fe बाय mg। हाँ, Fe बाय, mg। ठीक है ना। अच्छा, अब सोचो Fe क्या है, Fe है k इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितना है, k इनटू 2q स्क्वायर बाय सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, तो वो हो जाएगा 12 sin थीटा नहीं, sin थीटा, थीटा ही ले लो तुम, tan थीटा, थीटा 1 थीटा 2 बराबर है ना, ये बन गया कुछ, ठीक है भाई, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ओके सर। साइन क्यूब थीटा और cos थीटा आ जाएगा, वही साइन क्यूब थीटा का हम लोग इतना करना कर सकते हैं, हाँ ठीक है, मतलब यही आ गया tan थीटा
ठीक है, डेरिवेशन आ गया tan थीटा into sin थीटा tan स्क्वायर थीटा, ये ठीक है, इस तरह से एंगल को क्वांटिफाई कर पाएंगे, राइट? यस सर। सही, हाँ। अच्छा ये बताओ, अगर इस सबको किसी दूसरे मीडियम में डाल दें, ठीक है, मान लो हम किसको किसी लिक्विड में डुबा देते हैं, तो फोर्सेस में क्या चेंजेस आएंगे? सर फोर्सेस में तो एक तो बाइंड फोर्स लगेगा। राइट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज हो जाएगा। यस हाँ, सर एक वो और क्वेश्चन इसमें लिखो, पार्ट सी, ये भी कई बार आया हुआ है आई थिंक, लिखोगे? यस सर यस। पार्ट सी, ठीक है, ओके। जी सर। हाँ, if the whole arrangement is dipped in a liquid, the whole arrangement is dipped in a liquid, if the whole arrangement is dipped in a liquid, if the whole arrangement is dipped in a लिक्विड and it is found that angles of the string remains unchanged, the whole arrangement is dipped in the liquid, it is found that, सर वो तो फिर 180 डिग्री पे आ जाएंगे, मतलब दोनों का सम मिला के। नहीं, ये दिया हुआ है कि एंगल चेंज नहीं हुए, ये दिया हुआ ओके है, ठीक है, and it is also given that it is also given that rho of material, मतलब sphere upon rho of L equal to 2, लिक्विड की डेंसिटी क्या है? सर किसकी? रो ऑफ स्फीयर अपॉन रो एल, यहाँ पे देखो दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ, ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ? मतलब स्फीयर रो के मटेरियल की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी जो है उसका रेशियो 2 है, यानी लिक्विड की डेंसिटी आधी है स्फीयर के मटेरियल की, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना? जी सर। ठीक है, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का एप्सिलॉन आर बताना है, लिक्विड का एप्सिलॉन आर क्या होगा ये बताइए। क्वेश्चन में दिया हुआ तो एंगल चेंज नहीं हो रहा, एंगल जैसे है वैसे ही रह रहा है, और मैंने इसे इसको लिक्विड में डुबाया है, इस तरह से ये लिक्विड में डुबाया कि उस लिक्विड की जो डेंसिटी है ना स्फीयर के मटेरियल की डेंसिटी आधी है, ठीक है, जी सर। और एंगल भी चेंज नहीं हुआ, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो सर इसमें एक और फोर्स ऐड हो जाएगा। नहीं, दो एक्चुअली देखो, जब डुबाएंगे तो दो फोर्सेस चेंज होंगे ना, एक तो बाइंड फोर्स लगेगा यस और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एप्सिलॉन आर से डिवाइड हो जाएगा ना। अरे भाई जब हम लिक्विड में डुबाएंगे तो 1/4 पे एप्सिलॉन होता है ना फॉर्मूला ठीक का, यस सर। तो एप्सिलॉन के जगह पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर लिखना पड़ेगा ना हमको, यस सर यस। तो दो चेंजेस आ जाएगा, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एप्सिलॉन आर से डिवाइड हो जाएगा, यस और एक जो वेट लग रहा था उसके अलावा पॉइंट फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा। यस अब कह रहे हैं एंगल चेंज नहीं हुआ, ठीक है, जी सर। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये यस सर ट्राई। हाँ ये थोड़ा सा मतलब एडवांस टाइप का क्वेश्चन हो गया, हालांकि पुराना आईटी का क्वेश्चन नहीं है, पॉपुलर है, अक्सर मॉडिफाई करके पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्लास वी शैल डिस्कस द कैलकुलेशन ऑफ फील्ड इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है भाई। अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन लर्न करेंगे। ओके सर। तो मतलब एक ही मेन रिजल्ट है, उसी को मैनिपुलेट करके हम लोग सारे रिजल्ट निकाल लेते हैं। जी सर। इसके अगले क्लास में पोटेंशियल एनर्जी और रिलेशन विद फील्ड ये करेंगे। हो गया भाई? सर इसमें ओके, देखो इसमें ध्यान से देखना। वेयर इज द चेंजेस इन द फोर्सेस? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, मतलब अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा इसका, इस चार्ज पार्टिकल का, ध्यान से देखना होगा, ठीक है। जी सर। तो ये जो फोर्स है ना, ये स्फीयर जो है, ठीक है, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी लग रहा था वो अब कितना टाइम हो गया? FP by ER ओ एप्स। ठीक है। यस। अच्छा, और वेट की बात जब हम लोग करेंगे तो जो भी m1 लग रहा था या जो भी m लग रहा था, मान लो mg लग रहा था, ठीक है, उसके साथ साथ ऊपर एक बॉइंट फोर्स भी लगेगा ना। जी सर। बॉइंट फोर्स कितना टाइम होगा जानते हो? बॉइंट फोर्स हमेशा क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी इनटू रो एल बाय रो, ठीक है। बॉइंट फोर्स क्या होता है, अगर किसी भी वेट बॉडी को कंप्लीटली समझ करेंगे तो वेट ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ मेटेरियल ये होता है, जी ठीक है सर। भाई। यानी ये कितना यस। हो गया, ये हो गया mg/2, समझ में आ रहा है? G/2। अरे w तो mg हो गया, रो एल बाय रो तो दे ही रखा है ना क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, आप ये होगा तो यस। mg/2 हो गया, ठीक है। यस सर। अब देखो नीचे mg लग रहा है, ऊपर mg/2 लग रहा है, यानी फिर अपेरेंट वेट कितना हो गया, mg/2 हो गया, यानी दोनों में रिजल्टेंट निकालने हाफ हो गया। के हाँ। अब देखो अगर आपका एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो जो उसके स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वो भी अब फिर भी तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे ना भाई। यस। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपेरेंट वेट जिस रेशियो में कम होगा उसी रेशियो में इसको भी कम होना पड़ेगा, यस। ठीक है। यानी मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, मेरा इक्वेशन बनेगा Fe by epsilon r cos theta, Fe by epsilon r cos Epsilon। theta equal to what, ठीक है, mg minus mg/2 sin थीटा, ठीक है। तो वही रहा ना भाई, यानी एप्सिलॉन r कितना आ गया, यानी एप्सिलॉन r 2 आ गया। यस सर। नहीं सर आपने इनको किस डायरेक्शन में मतलब बैलेंस किया? देखो पहले कैसे किया था उसी हिसाब से सोचो। सर स्क्रीन वो नहीं हो रही, अब शो नहीं हाँ हो रही, ब्लैक हो हो रही है, गई। हाँ हाँ अब ठीक। हो रही है ना। देखो पहले कैसे किया था हमने, पहले हमने ये किया था ना, Fe का स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है उसको mg के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से बैलेंस किया था ना। यस। तो ये आया था ना tan थीटा 1 इक्वल टू Fe by mg। जी सर जी। अब तो जो tan थीटा 1 तो उतना ही रहा, Fe कितना हो गया, Fe by epsilon r हो गया, mg कितना हो गया, mg/2 हो गया, तो रेशियो तो वही रहना पड़ेगा ना। ओके।
नहीं है बच्चों में? यस सर यस। अरे जो भी एफ ई बाई एम जी का रेशियो पहले था वही अब एफ ई डैश और एम जी बाई टू का रेशियो होना चाहिए। यानी एफ ई डैश क्या हो गया, एफ ई डैश भी आधा हो गया, एफ ई बाई टू हो गया। यस। और एफ ई डैश क्या है, एफ ई डैश एफ ई बाई एप्सिलॉन आर। इसका मतलब एप्सिलॉन आर क्या आ गया है? और